Lektion 7. Heute lernen wir Personalpronomen. Pronounce with me. Personal. Personal. Personal bedeutet personal. Und Personal. Pronomen. Pronounce with me. Pronomen. 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 Okay, wiederholen Sie mit mir. Nomen. 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 Nomen bedeutet Noun. Nomen. Was ist Nomen? Nomen क्या होता है या was ist Noun? Noun क्या होता है? सर किसी भी चीज़ के Noun. नेम को किसी भी चीज का नाम. Sehr gut. Das Nomen ist der Name. Noun is the name of anything. किसी भी चीज का नाम. चाहे किसी इंसान का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी जगह का नाम हो. Alle sind Nomen. सब क्या है? Noun है. Und heute lernen wir kein Nomen. आज कोई Noun नहीं पढ़ेंगे. Sondern बल्कि heute lernen wir Pronomen. Pronounce with me. Pronomen. Pronomen bedeutet Pronoun. Was ist Pronomen? Pronomen या Pronoun क्या होते हैं? कोई बताना चाहेगा? Wer möchte antworten? If you would like to answer, just raise your hand, okay? Wer möchte antworten? कौन बताना चाहेगा? Was sind Pronomen oder Personalpronomen? Personal pronouns क्या होते हैं? Wann benutzt man Pronomen? या pronouns का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? Und was ist der Unterschied zwischen Nomen und Pronomen? Nomen यानी noun में und Pronomen यानी pronoun में क्या डिफरेंस होता है? राव इब्राहिम, रुके, जागमल. सब्जेक्ट का मतलब नाम को चेंज नाम के जगह पे मतलब हम यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन. Sehr gut, Rao Ibrahim. Ersetzen bedeutet to replace. किसी भी चीज को replace कर देना. मिस नुसरत. सर यही बात जो आप भी कह रहे हैं कि हम कोई किसी के बारे में कोई बात कर रहे होते तो हम नाम के साथ स्टार्ट में लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा उसके बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, तो फिर उसको हम प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं. यही है ना सर? Sehr gut, Nusrat, sehr gut. Faisal, hast du auch eine Erklärung? जी वही जो एग्जैक्टली जैसे आपने बताया कि नाउन को रिप्लेस करते हैं विद अदर वर्ड ताकि बार बार नाउन को लिखना रहना पड़े. Sehr gut, Faisal. Faisal, Miss Nusrat und Ibrahim haben gesagt, इन लोगों ने हमें बताया कि was ist Pronomen? Pronomen यानी pronoun क्या होता है? Ersetzen bedeutet to replace. Okay? Was macht das Pronomen? Pronoun क्या करता है? Pronomen ersetzt das Nomen. Pronoun replace the noun. Pronoun क्या करता है? किसी भी सेंटेंस में मौजूद noun को replace कर देता है. Damit ताकि wir das Nomen nicht immer wiederholen. ताकि we don't have to repeat the noun again and again. ताकि उस सेंटेंस में मौजूद noun को बार बार रिपीट करने की जरूरत ना पड़े. Personal pronouns are used to indicate the subject of a sentence. Personal pronouns क्या होते हैं? ये किसी भी सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट को फोकस करते हैं. उन personal pronoun uh, take the place of a noun. ये किसी भी सेंटेंस में या जुमले में मौजूद noun की पोजीशन को ले लेते हैं. And shows और शो करता है who or what is performing the action of the verb. कि कौन या क्या उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. Zum Beispiel auf dieser Seite, इस स्लाइड के ऊपर ein, haben wir einen Satz. एक सिंपल सेंटेंस है. Und der Satz ist, सेंटेंस कुछ ऐसा है कि Maria lernt Deutsch. Maria lernt Deutsch bedeutet Maria lernt German.
मारिया जर्मन सीखती है या मारिया जर्मन सीख रही है? मारिया लर्न्ड डॉइच। याद रखिएगा कि das ist ein Satzbau, ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। Und dieser Satz hat drei Elementen. This sentence has three elements. Okay, this sentence has three elements. Zuerst, सबसे पहले, was ist Maria? Maria क्या है? Maria ist ein Subjekt. Maria इस सेंटेंस का क्या है? Subject. Auf Deutsch Subjekt. जर्मन में कहा जाता है Subjekt und auf English, इंग्लिश में कहा जाता है Subject. Dann nach Maria, Maria के बाद was ist lernt? ये lernt क्या है? Das Verb. ist ein Verb. ये एक verb है, Verb auf Deutsch. Was zeigt ein Verb? Verb क्या शो करता है? Verb zeigt eine Aktion, Action को शो करता है। Action यानी अमल, पढ़ना, खाना, पीना, सोना, खेलना, आना, जाना। Alle Aktionen sind Verben. जितने भी एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। Maria Subjekt, lernt यानी सीखना Verb und am Ende, at the end, Deutsch. Deutsch ist ein Objekt, Objekt oder Objekt. Auf Deutsch nennt man Objekt. Subjekt means subject und Objekt means object. Maria lernt Deutsch. मारिया जर्मन सीखती है या मारिया जर्मन सीख रही है। मारिया ist Subjekt, मारिया क्या है? Subject. सीखना यानी lernt Verb und Deutsch ist ein Objekt. Klar? यहाँ तक क्लियर है सबको? मिस Yeah. नुसरत, hast du noch Frage, कोई क्वेश्चन? सर हम जैसे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट जो भी आप कह रहे हैं और Subjekt. वाई हाँ जुबियट और ऑब्जेक्ट को भी, तो वर्ब को हम वर्ब क्यों बोल रहे हैं? ये भी तो Verb. एफ है ना, वी फॉ है। Verb. बिल्कुल verb कहा जाएगा इसको। ओके वी का साउंड निकालेंगे हम, वी को। बिल्कुल वी का साउंड निकालेंगे क्योंकि ये इंग्लिश से उठाया गया ना वर्ब, इतना कॉमन है इसीलिए इसको verb कहा जाता है। ओके ठीक है। Subjekt, Verb und Objekt. Klar? Okay, so dieser Satz hat drei Elemente. The sentence has three elements. जर्मन जबान में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जो हम डेली लाइफ कन्वर्सेशन में फॉलो करते हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। Der Satzbau besteht aus nur drei Elementen. The sentence structure consists of only three things, three elements: subject, verb और object. इसके अलावा कोई तीसरी मेन चीज नहीं होती सेंटेंस में। ओके, तो इस चीज पे फोकस कीजिएगा। aber, heute, लेकिन आज, lernen wir kein Verb, आज जो हमारा फोकस है वो वर्ब पर नहीं है। heute lernen wir kein Objekt, आज का फोकस हमारा ऑब्जेक्ट पर नहीं है। sondern बल्कि heute konzentrieren wir nur auf Subjekt, आज का जो फोकस है वो किसके ऊपर है? सब्जेक्ट के ऊपर है। Verstehen Sie? Und im Deutschen, जर्मन में, haben wir drei Fälle. We have three cases in German. वैसे तो 4 होते हैं लेकिन फिलहाल आप 3 याद रखें। drei Fälle haben wir, 3 केसेस होते हैं जर्मन में। Zuerst Nominativ Case, Nominativ Case. Zweiter
Akkusativ Case, Akkusativ und drittes Dativ. थर्ड केस क्या होता है? Dativ, Nominativ, Akkusativ und Dativ. Verstehen Sie? और हर केस किसी एक चीज को फोकस करता है सेंटेंस में मौजूद। फिलहाल इतना याद रखें कि heute lernen wir Nominativ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है? नॉमिनाटिव के ऊपर। Was ist Nominativ? ये नॉमिनाटिव क्या होता है? Wer kann mir sagen? कोई बताना चाहेगा? किसी को पता है? Who would like to answer? Was ist Nominativ? हुमेरा? सर यस सर। हम्म, किसी भी सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट को डील करते हैं तो हम सब्जेक्ट को जो है वो नॉमिनेटिव कंसीडर करते हैं। तो sehr gut, Humera, sehr gut. Humera hat gesagt, Humera ने कहा कि Nominativ fokussiert nur auf Subjekt. Haben wir gerade gesehen, अभी हमने देखा कि ein Satzbau besteht aus 3 Elementen. A sentence structure consists of 3 elements: subject, verb and object. Aber, लेकिन, wenn wir über nur Subjekt sprechen, when we talk about the subject of a sentence, जब भी हम सेंटेंस में मौजूद सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को फोकस करें कि सब्जेक्ट में क्या है, वो कौन है जो उस काम को कर रहा है, तो उस केस को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। सिंपल ऐसे याद रखें कि नॉमिनेटिव सब्जेक्ट को फोकस करता है, नॉमिनेटिव केस किसको फोकस करता है? सब्जेक्ट को। सो जब भी नॉमिनेटिव लिखा होगा तो आप याद रखिएगा कि नॉमिनेटिव किसको फोकस करेगा? हमेशा सब्जेक्ट को। Verstehen Sie? Heute lernen wir Personalpronomen। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस। लेकिन पर्सनल प्रोनाउंस सेंटेंस में zuerst सबसे पहले schreibe ich hier, wie ist der Satzbau? सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है जर्मन ग्रामर का? zuerst सबसे पहले, Subjekt, dann Verb und am Ende Objekt यानी Object। ना? klar? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Sehr gut। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। इश देखना क्या है? वर्ब। जेहे तुम क्या हो? तुम क्या हो? ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम या कोई एक्शन कर रहा हो। मैं देख रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। किसे देख रहा हूँ? तुम्हें देख रहा हूँ। तुम क्या हो? ऑब्जेक्ट। इश जेहे डिश। डिश मीन्स तुम, तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें। So in diesem Satz, इस सेंटेंस में haben wir zwei Personalpronomen. We have two personal pronouns. इस सेंटेंस में दो पर्सनल प्रोनाउन है। पहला क्या है? इश, और दूसरा क्या है? डिश। ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन है। Aber heute lernen wir Personalpronomen im Nominativ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन इन नॉमिनेटिव। Und was ist Nominativ? Nominativ क्या होता है? नॉमिनेटिव एक ऐसा केस है जर्मन ग्रामर का जो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट को फोकस करता है, सिर्फ सब्जेक्ट को फोकस करता है। So heute आज lernen wir
Personal pronomen im nominative। इसका क्या मतलब हुआ कि आज जो पर्सनल प्रोनाउंस हम देख रहे हैं वो पर्सनल प्रोनाउन जो आज हम सीखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होंगे? सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट के लिए होंगे। वो पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं होंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के लिए वैलिड होंगे। alles klar, क्लियर है यहाँ तक सबको? फातिमा, हुमेरा, फिजा, अहमद यूसुफ, मिर्जा, हमजा, नशीद, राव, यासिर, alles klar? थोड़ा यस बोरिंग तो लगेगा आपको, लेकिन आप लोगों की जो बेसिक्स है ना वो ऐसी कर दूंगा कि बस याद करेंगे आप लोग। निहाल, हाँ जुनफ़ा का कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मुझे एक छोटा सा हम्म, क्लियर कर दीजिएगा कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे ना नॉमिनेटिव के अंदर। बिल्कुल इट डजेंट मैटर कि वो नाउन हो या नहीं हो, लाइक अगर ऑब्जेक्ट दूसरा भी नाउन हो, इट डजेंट मैटर, हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट को जो काम बिल्कुल कर रहा है या फिर जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। हु, निहाल, who is performing the action? Heute lernen wir who is performing the action? कौन उस काम को कर रहा है? और ठीक, जो भी इंसान उस काम को कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है ना। अब वो कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई सही पर्सन यानी इंसान भी हो सकता है, कोई थिंग यानी कोई चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सही। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ किस पे रहेगा? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे। और एक और चीज, होइटे मीन्स heute, heute means heute bedeutet today, today. यानी टुडे, ओके आज, ओके, आज, heute। थैंक यू। Alles klar? या Sehr gut. So heute, आज lernen wir Personalpronomen, aber लेकिन nur im Nominativ। आज जो हम पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ने वाले हैं वो फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट पे। उन पर्सनल प्रोनाउंस को कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑब्जेक्ट के पर्सनल प्रोनाउंस अलग होते हैं और वो पर्सनल प्रोनाउंस आपको दूसरे केसेस में पढ़ाए जाएंगे, जैसे अकुजाटिव या डाटिव। फिलहाल हमारा फोकस आज अकुजाटिव या डाटिव पर नहीं है, हमारा फोकस नॉमिनाटिव के ऊपर है। Klar? So, Maria lernt Deutsch. In diesem Satz, was ist Subjekt? Subject क्या है? Maria. मागिया। Maria ist Subjekt. Maria क्या है? सब्जेक्ट है। और हमारा आज का फोकस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे होगा। Klar? Okay. Aber, लेकिन Maria lernt Deutsch. Maria जर्मन सीख रही है। Aber Maria ist ein Name, ना, Maria तो एक नाम है और नाउन होता है नाम। नाम को क्या कहा जाता है? नाउन, यानी नोमिन। Maria ist kein Pronomen। मारिया कोई प्रोनाउन तो नहीं है, मारिया तो एक नाउन है और नाउन का मतलब है नाम। अब heute lernen wir Pronomen। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? Pronomen यानी प्रोनाउन। haben wir gerade gesehen, अभी हमने देखा कि प्रोनाउन क्या करता है। प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन सेंटेंस में मौजूद नाउन की जगह ले लेता है। Zum Beispiel Maria lernt Deutsch। Maria ist ein Nomen। Maria क्या है? एक नाउन है। Nomen यानी नाउन, यानी नाम। Sie lernt Deutsch। Sie lernt Deutsch in diesem Satz। Sie ist ein Pronomen। Sie क्या है? Pronomen यानी pronoun। Sie bedeutet, sie bedeutet she। sie का क्या मतलब है? she यानी वो, थर्ड पर्सन फीमेल। sie lernt Deutsch, she learns German। वो जर्मन सीख रही है। कौन जर्मन सीख रही है? मारिया। मारिया जर्मन सीख रही है। मारिया इज नोमिन, मारिया एक नाउन है। sie ist Pronomen, sie एक प्रोनाउन है। sie
ersetzt Maria. Sie ersetzt Maria का मतलब है कि जी ने मारिया को रिप्लेस कर दिया. Damit ताकि wir das Nomen nicht immer wiederholen, ताकि हमें बार बार मारिया के नाम को रिपीट ना करना पड़े. Verstehen Sie? So in diesem Satz, Yes, sir. sie ist ein Pronomen. Sie एक pronoun है. Klar, यहाँ तक क्लियर है सबको? दुआ ज़हरा, Yes. बिलाल Yes, sir. अख्तर, हमजा, निहाल, Yes. Clear, sir. मिस नुसरत, मिर्ज़ा, जवेरिया, यासिर, राव इब्राहिम, alles klar? अली नवाज. Okay, sehr gut. Dann, Maria lernt Deutsch. मारिया जर्मन सीख रही है. Sie wohnt in Berlin. वो बर्लिन में रहती है. Sie wohnt in Berlin. वो बर्लिन में रहती है. Haben wir ein Personalpronomen. एक पर्सनल प्रोनाउन है und das heißt ich. Pronounce with me ich. Ish. Ish. Wie spricht man das aus? Alif or Shin? Ich. Ish. Ich. Ish. Und ich bedeutet मैं यानी फर्स्ट पर्सन. मैं. Ich ist ein Subjekt. ये सब्जेक्ट है. und auch ein Personalpronomen और पर्सनल प्रोनाउन है. Ich का मतलब है मैं. Ich bin Student. Pronounce with me. Ich bin Student. Ish Ish bin. bin Ich bin student. 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 Ich bin Student. Ich bin Student. Student. मैं एक स्टूडेंट हूँ. Bin ist ein Hilfsverb. Hilfsverb का मतलब है Helping word. helping verb. Helping verb. और इंग्लिश में m जैसे यूज किया जाता है वैसे m की जगह bin का यूज किया जाता है. Ich bin. Das lernen wir auch später. इसको भी बाद में देखेंगे आगे चलकर कि helping verbs क्या होते हैं. फिलहाल हमारा फोकस helping verbs पर नहीं है. Heute fokussieren wir nur auf Subjekt. आज का फोकस किसके ऊपर है? सब्जेक्ट के ऊपर. Subject. कि wie viele Personalpronomen haben wir im Deutschen? जर्मन में कितनी तरह के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं और नाउन को कैसे कैसे रिप्लेस किया जाता है. Klar? Ich. Ich एक पर्सनल प्रोनाउन है नॉमिनेटिव का, याद रखिएगा. Ich का इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट की जगह किया जाएगा. Ich कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह नहीं आ सकता, कभी नहीं. क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ich नॉमिनेटिव का पर्सनल प्रोनाउन है. Klar? नॉमिनेटिव का पर्सनल प्रोनाउन है. और नॉमिनेटिव क्या होता है? Nominativ fokussiert nur auf Subjekt. Nominativ focuses only on subject of a sentence. Verstehen Sie? Klar? Okay, dann Yes, sir. gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Andere Personalpronomen. दूसरा personal pronoun. Und das heißt du, जिसको कहा जाता है du. Was bedeutet du? Du का क्या मतलब है? You. Du means you, You. यानी तुम. Yes. And we use this personal pronoun in order to point out a person. किसी भी इंसान को मुखातिब करने के लिए इस पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है. स्वाइट पेजोन, सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन का मतलब है वो इंसान जो आपके सामने मौजूद हो, उसको सेकंड पर्सन कहा जाता है. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन तो आप खुद होते हो. इश फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन आप खुद होते हो. यानी इश बिन तलहा. Ich bin erste Person, मैं first person हूँ. Und ich spreche mit Bilal, मैं बिलाल से बात कर रहा हूँ. So Bilal ist zweite Person. बिलाल कौन है? Second person. Second person है. Ich sage, मैं कहूँगा, Bilal, du bist müde. Bilal, du bist müde means
बिलाल तुम थके हुए हो? म्यूडे, प्रोनाउंस इट म्यूडे। Mude. म्यूडे मीन्स Mude. टायर्ड, Just यानी mude. थका हुआ। Tired. और डू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वो क्या है? बिस्ट। Bist. बिस्ट, डू बिस्ट। हिल्स वेबन लेनन भी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में बहुत डिटेल में कवर करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। फिलहाल इसकी टेंशन नहीं लें, फोकस करें डू के ऊपर। डू कब यूज किया जाएगा? इन इनफॉर्मल सिचुएशंस, इनफॉर्मल या कैजुअल सिचुएशंस, with your friends, your colleagues, in your family, with your siblings। अपने छोटों से बात करने के लिए, अपने बराबर वालों से बात करने के लिए, या उनको मुखातिब करने के लिए हमेशा डू का इस्तेमाल किया जाएगा। डू मीन्स यू, यानी तुम। डू बिस्ट mein Freund, तुम मेरे दोस्त हो। डू बिस्ट म्यूडे, तुम थके हुए हो। डू बिस्ट लुस्tig, तुम तो बहुत फनी हो। डू मीन्स तुम। Klar? Ich bedeutet मैं, ich का मतलब है मैं, und du means तुम, Du. यानी you। Tum. Dann kommen wir auf sie, sie के ऊपर आते हैं। Sie bedeutet auch you, sie का मतलब भी होता है you, aber लेकिन auf उर्दू, उर्दू में जी को कहा जाता है Up. आप, and we use this personal pronoun also in order to point out a second person। इस पर्सनल प्रोनाउन का भी इस्तेमाल किया जाता है सेकंड पर्सन को मुखातिब करने के लिए, वो इंसान, वो शख्स जो आपके सामने मौजूद हो। लेकिन इन कैजुअल सिचुएशंस और इन फॉर्मल सिचुएशंस, इन फॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल सिचुएशंस विद योर मैनेजर, विद योर बॉस, और अपने से बड़ों के साथ, एजेड लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, उनको मुखातिब करने के लिए हम हमेशा जी का इस्तेमाल करते हैं। जी, जी का मतलब भी होता है यू, लेकिन आप, फॉर्मल यू। Zum Beispiel, Sie sind freundlich. Sie sind freundlich. Freundlich bedeutet friendly. Freundlich bedeutet friendly. Pronounce with me freundlich. English. English. ये कॉम्बिनेशन याद है सबको? ई और यू वाला। Wie नहीं, spricht man diese Kombination aus? इस कॉम्बिनेशन ओए को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? ओए Oi. ओए, ओए। ओए Wie spricht man das aus? कैसे पढ़ा जाएगा? Freundlich. 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 Freundlich bedeutet friendly, दोस्ताना। इंग्लिश। Sie sind freundlich. आप तो बहुत दोस्ताना है। You are friendly. Okay? Sie bedeutet you, यानी आप। Klar? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस Sir, एक question है। If you have any question, raise your hand. Ahmad Yusuf. Okay, Ahmad? सर जो जी के साथ हमने जिम यूज किया है सर, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है बिल्कुल इसका हेल्पिंग वर्ब है। और ये हमेशा जी के साथ ही यूज होगा, जैसे बिल्कुल, डू के साथ बेस्ट हमने यूज किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू। इश के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? बिन बिन। डू के साथ बिस्ट। दिस जी के साथ जिन। अच्छा, विया का मतलब होता है हम, हमारे साथ भी जिन यूज होता है। ओके, दे, दे वाले जी के साथ भी जिन यूज होता है, तो इसको अभी आगे चलकर देखेंगे। ओके, निहाल, हाजुन खार, कोई क्वेश्चन? जी। जी अभी हमने बोला यू के लिए इस्तेमाल होगा फॉर्मल यू। बिल्कुल, जी हर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। जी शी के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाबिब मेगाटे की ज़ैनब भी हमने देखा कि जी
मारिया लैंडोइच वो जर्मन सीखती है, जी लैंडोइच वो जर्मन सीखती है, तो जी का मतलब शी भी होता है। ओके, एक से ज्यादा मतलब भी होते हैं एक जर्मन वर्ड के। Das schauen wir gleich. निहाल इसको अभी देखते हैं। ओके, तो ये अगर जैसे सिर्फ जर्मन में लिखा होगा सीसेन फ्रेंडिश, तो उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि ये यू आर है या फिर शी इज है? बिल्कुल निहाल, गुड फ्रागे, अच्छा सवाल है। ये आपको बताता है उसके साथ लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब। यू ओके। के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो जिंड होगा। अभी हमने देखा जी जिंड ना, जी जिंड freundlich। लेकिन शी वाले जी के साथ जिंड नहीं लगेगा, ओके। दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। द शाउन वी gleich, इसको अभी देखते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। Ahmad Yusuf, hast du noch Frage? Okay, sir, thank you. Okay, sehr gut. Dann kommen wir auf dritte Person. Dritte Person means third person. Third person male. Pronounce with me er. या Yeah. Er. Yeah, yeah. Er bedeutet he, yani wo. Zum Beispiel, he is a teacher. He is a teacher. वो teacher है. Er ist Lehrer. Pronounce with me Lehrer. लेगा Lehrer. Le- le- Pronounce with Lehrer. me Lehrer. Lehrer. लेगा लेगा Lehrer. le- Sehr gut. Lehrer. Lehrer bedeutet टीचर। और अगर फीमेल टीचर की बात की जाए तो वो होता है Lehrerin. ओके, Lehrerin। आई और एन आ जाता है am Ende als Endung, एंड में। Klar? So, er ist Lehrer. He is a teacher. He is, er के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या है? Ist. Er ist. Zum Beispiel, he is Yasir. वो यासिर है। Wie sagt man कैसे कहा जाएगा? हम्म, Sorry? He is Yasir. वो यासिर है। Du bist He, Yasser? Er ist He Yasser. er ist is Yasser. Yasir. Sehr gut. Er Ist ist Yasser. Yasir. Yes, sir. Du bist Yasir का मतलब है कि तुम यासिर हो। तुम यासिर हो, हाँ। Du bist Yasir. तुम यासिर हो। Er ist Yasir. वो यासिर है। आप यासिर हैं। Wie sagt man कैसे कहा जाएगा? आप यासिर हैं। Sie sind Yasser. Sie डू sind बिस Yasser. यासिर, sehr gut. Sehr gut. डू Schreibe ich hier, मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए। Du bist Yasir bedeutet तुम यासिर हो। While du bedeutet, क्योंकि du का मतलब होता है तुम। अगर मुझे कहना हो कि आप यासिर हैं, आप यासिर हैं। Sie Sie sind Zia, Yasser. Zia, sind, Zind, Yasser. Yasser. Sie sind Yasir. Sie means आप। Up. Sie means आप यासिर हैं। Sie sind Yasir। और अगर कहना हो कि वो यासिर है, वो Yeah, Er it's वो ist के लिए क्या Yasser. यूज किया जाएगा? er। Yeah. er Er ist Yasir। klar? Sehr Yasser. gut, sehr gut। ए का मतलब है वो। Dann kommen wir auf sie। Sie के ऊपर आते हैं। Sie bedeutet auch you, haben wir gerade gesehen। अभी हमने देखा कि sie का मतलब होता है you formal, यानी आप। Sie sind freundlich, आप तो बहुत दोस्ताना हैं। Sie sind müde, आप थके हुए हैं। Sie sind Ahmed, आप अहमद हैं। Sie sind Nusrat, आप नुसरत हैं। Sie means आप, you formal। But, aber, benutzen wir auch sie für dritte Person. We also use sie for the third person.
थर्ड पर्सन फीमेल के लिए भी जी का इस्तेमाल किया जाता है। जी bedeutet शी यानी वो। zum Beispiel शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है। जी ist इस ersten, pronounce it me ersten। एस Aston. नॉर्मली मेल डॉक्टर को कहा जाता है, pronounce it me der There. asked, Dear. asked, Asked. asked कहा जाता है। ओके, Yeah, pronounce it asked. me asked, Yeah. Asked. asked। लेकिन Ah, फीमेल डॉक्टर के लिए ए के ऊपर umlaut आ जाता है और एंड में क्या आता है, आई Ian. और एन। yeah. तो अब ये आस्टिन नहीं होगा बल्कि एस्टन, प्रोनाउंस इट मी As एस्टन। Aston. आ umlaut याद है, umlaut, Yes, sir. Apple. sehr gut, Äpfel, sehr gut। शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। जी ist ersten, sie ist ersten, klar। सर इधर शी के साथ हेल्पिंग वर्ड इस्ट लगेगा है? बिल्कुल, शी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगा, इस्ट। इस्ट होगा। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, इतनी निहाल ने पूछा था ना, निहाल, जी। कि जो फॉर्मल यू वाला जी है, हम्म। जी के साथ अगर जिंड लगा हुआ है, इसका मतलब वो जी कौन सा है, यू। 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 और जी के साथ अगर इस्ट लगा हुआ है शी। तो वो जी कौन सा है, शी। शी वाला, klar। यस। यस सर। मिस नुसरत, hast du noch Frage, कोई क्वेश्चन? जी सर, अभी इसका आंसर मिल गया। मैं भी यही कहती, किस कंडीशन में जिन लगता है, किस कंडीशन में इस्ट बिल्कुल, लगता है। अभी आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू। यू वाली कंडीशन में हमेशा जी जिंड होगा। ओके ओके, वेरी गुड। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आपने बताया था जब हम आपके नाम से मुखातिब करते हैं तो उसके लिए हम जी यूज करते हैं, तो जी यू में भी यूज होता है और शी में भी यूज होता है। बिल्कुल, और भी जगहों पर ठीक जी है, यूज होता है, अभी आगे चलकर देखेंगे। ओके। जी दे के लिए भी इस्तेमाल होता है। ओके, इसको हम लोग एस एस्टन पढ़ेंगे ना। एस्टन। एस्टन, बिल्कुल एस्टन। एस्टन। ओके, एस्टन। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज आपके लिए, वो क्या, कि आपने देखा होगा कि जो यू वाला जी था वो हमने कैपिटल एस के साथ लिखा, ऊपर गान सोबिन यहाँ यस। ऊपर, बिल्कुल अगर आप देखें कैपिटल एस के साथ। हम्म। लेकिन शी वाला जो जी है, शी वाला, वो हमेशा स्मॉल एस के साथ लिखा जाएगा, हमेशा। अगर तो वो सेंटेंस के बीच में है या सेंटेंस के आखिर में, तो उसको हमेशा स्मॉल एस से लिखा जाएगा। ये शी वाले जी की पहचान है। हाँ, अगर तो वो सेंटेंस के स्टार्ट में है, शी वाला जी अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो मजबूरी की सिचुएशन में इसको कैपिटल एस से लिख दिया जाता है, बिकॉज ऑफ द रूल्स, क्योंकि यस सर। सेंटेंस का स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। लेकिन अगर शी फर्स्ट पोजीशन पर ना हो तो उसको हमेशा स्मॉल एस। स्मॉल में लिखा जाएगा। Alles klar? यस। Sehr gut. Zum Beispiel, ich bin asked, oder einen Moment. Okay, zum Beispiel, ich bin Student. मैं एक स्टूडेंट हूँ। und ich habe eine Freundin, मेरी एक दोस्त है। Sie ist auch Studentin, वो भी एक स्टूडेंट है। और मुझे कहना हो कि मैं और वो स्टूडेंट्स हैं, तो अब मैं क्या कहूँगा कि ich und सी। उन sie, small. Ich und sie sind Studenten, हम स्टूडेंट्स हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि जी के साथ तो इस्ट आता है, अब यहाँ जी के साथ जिंड क्यों आ गया? जस्ट यस सर। बिकॉज ऑफ क्योंकि हम प्लूरल की वजह जी से। सर जी जब भी आपके पास दो सब्जेक्ट्स हों या दो प्रोनाउन हों तो उस सिचुएशन में जिंड आता है। zum Beispiel ओके सर। निहाल ist यस सर। müde, निहाल थका हुआ है। बिलाल ist auch müde, बिलाल भी थका हुआ है। ओके, zum Beispiel schreibe ich hier ganz oben मैं ऊपर लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए। निहाल ist müde, म्यूट। निहाल थका हुआ है। und बिलाल ist auch müde, बिलाल भी थका हुआ है। अगर मुझे कहना हो कि निहाल और बिलाल थके हुए हैं एक साथ एक ही जुमले में, निहाल निहाल उन दाल बिलाल जिन म्यूटे जैगुड जागेश मैं कहूंगा कि निहाल उन und बिलाल बिलाल जिन म्यूटे म्यूट दोनों थके जिन हुए जिंड म्यूडे। म्यूट। सर अगर निहाल और हम बिलाल थके हुए हैं प्लूगाल। सर अगर हम नाम हटा दें निहाल और बिलाल यूं कहें कि दोनों थके हुए बिल्कुल, जैसा भी उसके आप लिए जो पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जाएगा मिस नुसरत शाउन बेगलाइश, इसको अभी देखते हैं। ओके, आगे ठीक चलकर ठीक klar, sehr gut. फैसल, also noch folgende question? जी मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो वो जो आपने एग्जाम्पल बताई थी इश ऑन जी जेंड स्टूडेंट वाली जो थी, हम्म, उसमें तो अब जेंड लगा रहे हैं हम बिकॉज हमारे पास दो प्रोनाउंस हैं। बट अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी जो है ये हर वाला जी है या ये यू वाला जी है? बिकॉज कौन बताएगा? Who would like to answer? wer möchte मैं फैसल या क्लियन, कौन फैसल को एक्सप्लेन करना चाहेगा कि कैसे पता चलेगा? Heben Sie die Hand, raise your hand. ओके निहाल। शी का और उन्होंने उसका पूछा ना, जो वही जो मेरा सवाल था। तो हम लोग देखेंगे उसको जो आगे हेल्पिंग वर्ब लगा होता है ना, अगर इस लगा हुआ है तो उसका मतलब शी की बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग जो दूसरा वाला था वो क्या निहाल एक्चुअली फैसल ने पूछा कि जी की सिचुएशन में यहाँ पर भी जिंद है, हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जी शी वाला है या यू वाला है? क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं ना, इश और जी। अगर इसके साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब शी है। अगर एक ही होता तो फिर हम लोग दे कंसिडर करते। इसके अलावा भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है सर जवेरिया। अगर ई सर छोटा अगर रहेगा। सेंटर में आएगा तो जी छोटा का रहेगा। एस स्मॉल है, तो जैक हम ये पहचान सकते हैं कि ये शी के लिए यूज हुआ है। अगर ये यू होता तो एस कैपिटल होता। sehr gut जवेरिया, sehr gut। haben wir gerade gesehen, अभी हमने देखा कि जी अगर अकेला लिखा हुआ है, मैंने दो जी लिखे यहाँ पर, और मैं आपसे पूछूं कि पहला जी कौन सा है और दूसरा कौन सा है, तो अब आप बता सकते हैं कि पहला जी यू वाला है वो वाला और दूसरा जी शी वाला है। क्यों? है एस कैपिटल स्मॉल। कैपिटल और स्मॉल। तो इस सेंटेंस में अगर यहाँ मैं स्मॉल जी की जगह कैपिटल जी लिख देता तो अब इसका मतलब होता कि मैं और आप स्टूडेंट्स हैं, यस सर। जी लेकिन सर फिलहाल यहाँ स्मॉल एस है, तो इसका मतलब ये कि मैं और वो, आई और शी। क्ला सर यस एक फिर मिनट सर, अगर ये जो हमारा सेंटेंस है ये जी से स्टार्ट होता तो भी हम जेंड यूज नहीं, करते। अगर जी से स्टार्ट होता सेंटेंस तो जी कैपिटल होता, बिकॉज ऑफ द रूल्स, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में तो नहीं सर, वो लगाना ही क्वेश्चन नहीं होता है। है। क्वेश्चन ये है कि अगर जी इश की जगह पे है और इश जी की जगह पे, तो हम जिंड ही यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल जिन का यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ प्लूरल, दो लोग हैं, ओके सर। दो लोग हैं, प्लूरल। ओके। अच्छा एक ओके और सर, थैंक यू। क्वेश्चन है। ये जो जेंड हमने मल्टीपल प्रोनाउंस की वजह से किया है, इसमें लाइक कोई भी प्रोनाउन हो एज लॉन्ग एज वो एक से ज़्यादा है जेंड होगा। बिल्कुल सेकंड थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन बिल्कुल। फर्स्ट पर्सन कुछ भी हो। प्लूगाल, प्लूगाल यानी प्लूरल, प्लूरल के केस में चाहे
2 लोग हों, 3 लोग हों या 10 लोग हों, जब 2 लोग आ गए तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। ओके, इस चीज़ को और डिटेल में कवर करेंगे जब हम हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे। क्लियर? ओके। ओके वेरी सर। गुड। फिलहाल आप लोग इस पे फोकस करें कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है। जवेरिया, हाजुन ऑफ कोई क्वेश्चन? जी, जैसे अभी किसी ने पूछा था कि अगर जी इश की जगह आ जाए, इश जी की जगह आ जाए, तो अगर जी स्टार्ट में आ जाए, जी उन इश, तो उसमें जिंड आ रहा है, तो उसमें कैसे पहचानेंगे कि यू है या शी है? बिल्कुल, उसमें आप नहीं पहचान सकते, लेकिन आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से पता होगा। ओके, सही। ओके अगर मैं ओके। कोई कहानी पढ़ रहा हूँ और उस हम्म। कहानी में ऐसी सिचुएशन आ गई कि जी शुरू में आ गया, उसके बाद इश आ गया और फिर जिंड आ गया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जी शी वाला है या यू वाला है या दे वाला है? तो ये मुझे शुरू में कहानी की शुरू की लाइंस को देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, कहानी का ठीक है। करेक्टर कौन है। ओके, ओके ओके। मिस नुसरत, हाजुन ऑफ क्वेश्चन? जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभी सब चीजें सेम होती हैं, जो कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि जिन लिखना है, लेकिन वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है ना बिल्कुल, कि हम उसको हमारी किस तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बाय मिस्प्रेशन, आप किसको फोकस कर रहे हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप किसको मुखातिब कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है। alles klar, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। ओके डन। बिसियट्स अभी तक हाबिन व्यगिजीन हमने देखा। इश, वस इस्ट इश, इश क्या है? इश मीन्स मी। आई या मैं। आई। डू, वस इज डू? यू। यू। डू इज यू यू इनफॉर्मल। यानी तुम। जी, जी bedeutet आप जेंट। आप। you यू। यानी आप, und sie bedeutet शी। she वो यानी वो, er bedeutet he ही यानी वो। klar, यहाँ तक क्लियर सबको? यस। यस सर। निहाल, बिलाल, दुआ ज़हरा, यस alles सर। klar, जवेरिया, मरियम, हुमैरा, alles klar, यस। यासिर, दानियाल, यस सर। नाशीद, यस राव सर। इब्राहिम, मिर्जा अली, खिला। अभी हो गए। ओके, when it was nicht खिला is then frag mal, पूछ लिया करें। अहमद यूसुफ, ओके, sehr क्लियर gut. सर। Dann gehen wir weiter, आगे चलते हैं। Kommen wir auf wir. Wir, first person, first person, Plural, first person Plural. Wir bedeutet wie यानी हम, हम, we. ओके। Pronounce with me, wir, वी वी। विया। wir. विया। वियर नहीं पढ़ा जाएगा इसको, क्यों? एक रूल बताया था अगर आपको याद यस सर। हो। वो रूल क्या था? सर आर, और एंड पे आएगा तो जी आप पढ़ेंगे। Sehr gut. और अगर एंड में आएगा, wenn er am Ende kommt, तो उसको अलिफ मदा से छोड़ दिया जाएगा, wir. Wir sind Freunde. Wir sind Freunde. We are friends. हम दोस्त हैं। Wir sind Freunde. Freunde bedeutet friends फ्रेंड्स। यानी दोस्त। एक दोस्त को क्या कहा जाता है? एक दोस्त, सिंगल दोस्त। फ्रेंड। फ्रेंड। Freund. Pronounce with me, Freund. पॉइंट। Einfach Freund. ये कॉम्बिनेशन याद है सबको, ये वाला? यस सर। ओए। Freund. Freund bedeutet पॉइंट। फ्रेंड। बॉयफ्रेंड, मस्कुलिन, बॉयफ्रेंड। और अगर फीमेल फ्रेंड की बात की जाए, सो फीमेल फ्रेंड को कहा जाएगा दी Freundin. Okay, die Freundin. यस सर। Freundin bedeutet गर्लफ्रेंड, दी Freundin. Klar? Freund का मतलब है दोस्त, Freundin का मतलब है फीमेल या गर्लफ्रेंड। Freunde, was ist Freunde?
प्लूरल। हाँ फ्रेंड्स एक से ज्यादा दोस्त। ओके, एक से ज्यादा दोस्त। तुम मेरे दोस्त हो, du bist mein Freund। तुम मेरे दोस्त हो, du bist mein Freund। पॉइंट। हम दोस्त हैं, we are friends। Wir sind वी आर इन Freunde। पॉइंट। Wir sind Freunde। Freunde. Klar? Freunde, Freund. Freunde, Freund. Ahmad Yusuf, Bilal, Bilal Ahmad, Bilal Akhtar, Yasir, Nihal, Hamza, Anas Klar, Humaira, यस सर। So इनकी Jamelia, pronunciation तो सेम ही रहेगी ना, Freund and Freunde. Freund, Freunde, Freundin. Pronunciation will remain same. Klar? Yes. Okay, then wir. Wir means हम. Then kommen wir auf sie. Sie के ऊपर आते हैं। हाबिन गाटी के ज़ेन अभी हमने देखा कि जी का मतलब यू भी होता है, शी जी का मतलब शी भी होता है, और जी का मतलब दे भी होता है। दे bedeutet वो लोग, दे आर स्टूडेंट्स, वो लोग स्टूडेंट्स हैं। जी जिन स्टूडेंटन, जी जिन स्टूडेंटन bedeutet स्टूडेंट्स। दे आर स्टूडेंट्स, वो लोग स्टूडेंट्स हैं। लेकिन एक रूल यहाँ कॉमन है जी का, और वो क्या? S small होगा. स्मॉल एस। चाहे वो शी वाला जी हो या या दे वाला. दे वाला जी हो, जी का एस हमेशा स्मॉल रहेगा। सिर्फ किस सिचुएशन में जी का एस कैपिटल होगा? तो सेकंड पर्सन होगा, मतलब you. सेकंड पर्सन यू, यानी आप। फॉर्मल यू जब आप किसी को मुखातिब करें आप। Verstehen Sie? Klar? यस Sehr gut. इसकी Dann, pronunciation दोबारा बताएंगे? किसी का क्वेश्चन है? फैसल? जी ये इसकी pronunciation दोबारा बता दें, स्टूडेंट्स का जो Studenten. Okay? Pronounce with me. Student. Student. Studenten. ओके। Miss Nusrat has noch Frage, कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जी जिन है, ठीक है, जी जिन तो उस वक्त भी लगेगा ना सेकंड पर्सन बिल्कुल तुम लगेगा। वाले में, आप वाले तुम में। तो हम इस ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको देखते हुए हम इसको हम दे कह रहे हैं। बिल्कुल, ये जो जी है ये ऑब्जेक्ट, दे। सॉरी ऑब्जेक्ट। नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, कह सकते हैं आप, कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट में अगर चूंकि अगर ज्यादा लोग हैं, हम्म तो आप ऐसे समझ सकती हैं कि वो जो जी है वो दे वाला है। क्योंकि ये दोनों चीजें तो एक जैसी ना, जी जिन तो हम आप में भी लगा रहे हैं ना, वो जो नो सेकंड पर्सन, तो ये ऑब्जेक्ट की वजह से तो समझ में आ रहा है कि ये दे की बात हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ठीक आपको कहना हो कि यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, हम्म तो सेंटेंस विल रिमेन सेम। जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा कि जी जिन स्टूडेंट जी, स्टूडेंट, मैं यही कहना लेकिन चाह उसमें रही थी। सिर्फ स्टूडेंट हो जाएगा। जय गुड, बिल्कुल जी नुसरत। जी सर। और इसके अलावा बाकी सबको समझ आया? ये सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस है ये जी यू वाला है, जबकि इस सेंटेंस में जी दे वाला है। Klar? Yes. यस Sehr gut. Das braucht viel Übung. This requires a lot of practice. जितनी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होती हैं उनको लाजमी किया करें पीडीएफ में मौजूद, तो ये टॉपिक आपका और बेहतर हो जाएगा। Then S, pronounce with me, S. S. यस S bedeutet it, simple it. Zum Beispiel, it's cold. It's cold means सर्दी है। Es ist kalt. Pronounce with me, es ist kalt. S is दिस इज कॉल्ड। एस इज कॉल्ड okay. S. Es ist kalt bedeutet सर्दी है। It's एस cold. कॉल्ड Klar?
Yes. Okay. And then Iha, pronounce with me. Iha, Iha. Yeah. Iha. Iha bedeutet you all. You all. तुम लोग. You all. तुम लोग या तुम सब. Zum Beispiel, Iha seid meine Freunde. Iha seid meine Okay. Freunde. तुम लोग मेरे दोस्त हो. You guys are my friends. Iha means तुम लोग, you all. When you point out a group of people casually, okay, casually. Zum Beispiel अगर casual way में बात करें, गौर से सुनिएगा, okay? Junge Sie mich gut zu. Listen carefully. Casual situation की बात करते हैं, simple casual situation. If I point out a single person casually, अगर मैं सिर्फ एक इंसान को मुखातिब करूं casually कि तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं कौन सा पर्सन प्रोनाउन यूज करूंगा? Du bist meine Du Freundin. Sehr gut. bist Du, meine du Freundin. means तुम. Do means tum, and we use this personal pronoun in order to point out a single person casually. एक इंसान को मुखातिब करना हो casual way में कि तुम zum Beispiel, zum Beispiel, Daniel, I point out Daniel casually कि Daniel तुम मेरे दोस्त हो. Daniel, du bist mein Freund. Freund. Du bist mein Freund. तुम मेरे दोस्त हो. But aber jetzt, लेकिन अब I'm not pointing out a single person casually. अब मैं किसी एक इंसान को मुखातिब नहीं कर रहा, बल्कि sondern I point out a group of people casually. अब मैं एक से ज्यादा लोगों को मुखातिब कर रहा हूँ casually. Zum Beispiel Daniel, Faisal, Mirza, Bilal. तुम लोग मेरे दोस्त हो. तुम लोग. When I point out a group of people casually, जब एक से ज्यादा लोगों को casually मुखातिब करूंगा, तुम लोग, तो अब do का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते क्योंकि do क्या है? सिंगल पर्सन. तुम लोगों के लिए क्या यूज किया जाएगा? ईहा. Iha. प्रोनाउंस विद मी. ईहा. इहा Iha. इहा और ईहा के साथ जो helping verb यूज होता है, Hilfsverb, das heißt seid. प्रोनाउंस विद मी. Seid. Zaid. जाइड Du जाइड bist. ईहा seid. You guys are my friends. तुम लोग मेरे दोस्त हो. Ihr seid meine Freunde. Du alles नहीं हो सकता. Bilal, du alles ist falsch. Okay? Ihr means तुम लोग. Ihr seid meine Freunde. Alles klar? यहाँ तक क्लियर सबको? अच्छा सर, अगर इसको मतलब आप लोग हमारे दोस्त हैं इस तरह करें, आप लोग मेरे दोस्त हैं। दशान रिलाइश मिर्जा, इसको अभी देखते हैं. ओके? बिल्कुल इसको भी देखते हैं. सब सीखेंगे, सब सीखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है. यहाँ तक क्लियर है सबको? मरियम, हुमेरा, मिर्जा, दानियाल, फैसल, Yes, sir. नाशिद, alles klar? राव इब्राहिम, फिजा, दुआ ज़हरा, बिलाल अख्तर, बिलाल अहमद, निहाल, alles klar? हमजा. Yes. Okay, Yes. sehr gut. Dann Sie. Sie का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा हो गया आज, नहीं? बहुत ज़्यादा कर लिया. Yes, sir. जी का इस्तेमाल यू के लिए भी किया जाता है. जी का इस्तेमाल शी के लिए भी किया जाता है. And they. जी का इस्तेमाल दे के लिए भी किया जाता है. जबकि जी का इस्तेमाल यू ऑल यानी आप सब के लिए भी किया जाता है. Hören Sie mich gut zu, listen carefully. In formal situation, formal situation. If I point out
अ सिंगल पर्सन फॉर्मली, अगर मैं किसी एक इंसान को मुखातिब करूं फॉर्मली, फॉर्मल वे में, zum Beispiel, uh, ich spreche mit बिलाल, मैं बिलाल से बात कर रहा हूँ। बिलाल, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त हैं। Sie sind mein Freund, Sie sind mein Freund। आप मेरे दोस्त हैं। वैसे दोस्तों से आप से बात नहीं की जाती, गुना मिलता है, लेकिन फिर भी इमेजिन कर लें, जी मीन्स आप। इफ आई पॉइंट आउट अ सिंगल पर्सन फॉर्मली, फॉर्मल वे में अगर किसी सिंगल पर्सन या एक शख्स को मुखातिब करूं तो कैसे मुखातिब किया जाएगा? जी यानी आप। जी sind mein Freund, जी sind mein Chef, आप मेरे बॉस या मैनेजर हैं। शेफ मैनेजर या बॉस को कहा जाता है। जी sind mein Chef, you are my manager। सो फॉर्मल वे में तो हमने देखा कि अगर एक शख्स को मुखातिब किया जाए तो जी का इस्तेमाल किया जाता है। बट अब jetzt, लेकिन अब इफ आई पॉइंट आउट अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्मली, अगर एक से ज्यादा लोगों को मुखातिब करूं फॉर्मल वे में कि आप सब या आप लोग, शायबेशिया ऑफ उर्दू में लिखता हूं आप लोग, यू ऑल, आप लोग मेरे दोस्त हैं। Sie sind meine Freunde, या आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं। यू ऑल आर स्टूडेंट्स। Sie sind Studenten। स्टूडेंट। तो आपने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या कि कैपिटल जी का इस्तेमाल यू सिंगुलर यानी एक शख्स को मुखातिब करने के लिए भी किया जाता है, और कैपिटल जी का इस्तेमाल यू प्लूरल यानी एक से ज्यादा लोगों को मुखातिब करने के लिए भी किया जाता है। बट इन फॉर्मल सिचुएशन में आप या आप लोग, इन दोनों के लिए जी का यूज किया जाएगा। जी का मतलब होता है आप या आप लोग, इन दोनों चीजों के लिए हाँ जी का इस्तेमाल किया जाएगा। अखला, क्या तक Yes, क्लियर है सबको? yes, sir. ओके, zum Beispiel wiederholen wir nochmal, एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। Du, if I point out a single person, zum Beispiel if I point out a single person, तुम मेरे दोस्त हो, benutze ich du oder sie? दो। Du का यूज करूंगा, du means तुम, तुम। तुम मेरे दोस्त हो। Du bist mein Freund, Freund। du bist mein Freund, तुम मेरे दोस्त। And if I point out a group of people casually, अगर मैं casually एक से ज्यादा लोगों को मुखातिब करूं, मीन्स तुम लोग, इहा इहा, Iha. Zaid. इहा जाइड Meine meine Freund. Freunde, तुम लोग मेरे दोस्त हो। मैंने क्ला, फिलहाल Ihr इसको seid इसकी meine टेंशन नहीं Freunde। लेके, इसके साथ जाइड है, इसमें बिस्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। das schauen wir später, इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल आपका फोकस सिर्फ किस पर है? दू पर और इहा पर। Ihr पर। Okay. क्ला, Yes sir। दू में और इहा में डिफरेंस क्लियर है सबको? Yes, Yes sir. sir। यस सर यासिर, निहाल, अहमद, दुआ, जहरा, फातिमा, फिजा, जवेलिया, यस सर मरियम, अलस्खला, हुमेरा, Yes. मिस नुसरत, मिर्जा अली, नाशीद, राव, इब्राहिम, दानियाल, अलस्खला, फैसल। ओके देन, wenn etwas nicht klar ist, dann frag mal, पूछ लें, शर्माने की क्या बात है? ऐसा तो नहीं है ना कि सभी समझ आ रहा हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इतना तो सर मेरे समझ एक नहीं आता। छोटी सी एक चीज मतलब कंफर्मेशन थी
वो ये हम्म कि जब हम लोग फॉर्मल में बात करेंगे हम्म तो फॉर्मल में हमने सिर्फ सिंड यूज करना है, ठीक है, सॉरी जी यूज करना है, ठीक है, हम्म कैपिटल जी यूज करेंगे। और उसको ये चीज देखेंगे कि अगर प्लूरल है तो एंड के अंदर ई एन लगा होगा या ई लगा होगा, और अगर सिंगुलर है या यू की बात करें तो हम लोग नहीं होगा ई, सही है। और अगर हम लोग सिर्फ जो कैजुअल है उसके अंदर चीजें चेंज होती हैं, डू और ईयर, राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर एक चीज ये भी समझ में है कि हम लोग नॉर्मली जब भी कोई चीज यूज करते हैं दूसरे के लिए या फिर मल्टीपल लोगों के लिए, तो हम एंड में ऐसे ई लगाते हैं, फ्रेंड है, सही है। लेकिन यहाँ पे हमने माइन ने भी लगाई है, ई लगाया है ना, तो वो मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों लगाया हमने। जैसे ये लिखा है जीज इन माइन कॉलेज, जीज इन माइने कॉलेज, कॉलेजन। जयकुल गुड आगे, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। एक्चुअली जो माइन है या मायने है, ये आर्टिकल्स हैं, ओके। और जो आर्टिकल्स होते हैं वो किसी भी नाउन के जेंडर पे डिपेंड करते हैं, ओके। Du bist mein Freund, तुम मेरे दोस्त हो। Du bist meine Freundin, तुम मेरी दोस्त हो। मेरे दोस्त हो, मेरी दोस्त हो, जैसे उर्दू में होता है मेरा या मेरी, बिल्कुल वैसे हाँ ही जर्मन में होता है माइन और माइने। लेकिन ये डिपेंड करता है नाउन के जेंडर के ऊपर। और 10 लेजन भी बेटा, ओके। इन चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर करेंगे आगे चलकर, खिला कवर करेंगे इसको, फिलहाल इसमें कंफ्यूज ना हो। alles klar? ओके ओके। Okay, then Miss Nusrat has noch Frage question. जी सर। सर हम्म मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। मैं ये कहती हूँ अभी तक हमने जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें मैं ज़रा सा रिपीट कर लूँ, आपसे पूछ लूँ। फर्स्ट पर्सन इश में हम बिन लगाते हैं, और विया में जो प्लूरल है उसमें हम विया जिन लगाते हैं। जी सर, यही है ना। बिल्कुल। और जो सेकंड पर्सन है कैजुअल, उसमें हम बिस लगाते हैं डू के साथ, और इसका जो प्लूरल है इया, उसमें हम जेड लगाते हैं। और इसी सेकंड पर्सन में जो फॉर्मल फॉर्मल है जिसमें जी आता है, दोनों में, दोनों जी है, आप और आप लोग, दोनों में जिन लगाते हैं। और जो थर्ड पर्सन है इया और जी मतलब शी, और ई एस इस इट, इसमें हम, इसमें और इसी का थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है दे, जिसको जी बोलते हैं, इन दोनों में जिन लगेगा। ऐसे ही ना सर? या जी एस के साथ इस्ट लगेगा, यानी अ- शी, ही और इट के लिए ना, बिल्कुल। या एक से ज्यादा लोग होंगे तो जेंड आ जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, खिला, ये थर्ड पर्सन में इया मतलब बिल्कुल इया जी बिल्कुल, और इस के साथ इस्ट लगेगा। हमेशा इस्ट और लगेगा। ये बस हेल्पिंग सही। वर्ब्स हैं, फिलहाल इनमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। हेल्पिंग वर्ब्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें इन चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर करेंगे इंशाल्लाह, ओके। फिलहाल जो आज का हमारा फोकस है वो सिर्फ किसके ऊपर है, ये पर्सन प्रोनाउंस के ऊपर, कि पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं और इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, ओके। फिलहाल अगर आप लोगों को ये समझ आ गया अच्छे से, तो हेल्पिंग वर्ब्स का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह उसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे, फिर आप लोगों के पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगी हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर। खिला मिस नुसरत, फिलहाल जो आपने बताया वो बिल्कुल ठीक था, जी ओके। सर, ठीक, जय थैंक गुड, यू। जय गुड। सो haben wir gesehen, हमने देखा कि if I point out a single person casually, एक इंसान या एक शख्स को अगर मुखातिब किया जाए कैजुअल वे में, then benutzen wir immer do, हमेशा do का इस्तेमाल किया जाएगा। and if I point out a group of people casually, शायबिशिया का आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ कैजुअली, कैजुअल वे में एक से ज्यादा लोगों को अगर मुखातिब किया जाए, मीन्स तुम लोग, then benutzt man ईहा immer इहा, इहा का इस्तेमाल किया जाएगा। klar, okay, dann sie, haben wir zwei sie, दो sie हैं हमारे पास। if I point out a single person formally, अगर मैं फॉर्मल वे में, फॉर्मली
किसी एक शख्स को मुखातिब करूं, zum Beispiel आप मेरे कुलीग हैं, आप Sie bedeutet आप, आप dann sage ich, मैं कहूँगा Sie sind mein Kollege, खोले Sie sind mein Kollege, you are my खोलेंगे colleague, आप मेरे कुलीग हैं. A single person formally, एक शख्स को मुखातिब किया जा रहा है तो जी का इस्तेमाल किया जाएगा ना, klar. But if I point out a group of people, एक से ज्यादा लोगों को मुखातिब करूं formally, formal वे में, dann benutze ich auch sie, तब भी मैं जी का ही इस्तेमाल करूंगा. Und sage ich, मैं कहूंगा Sie sind meine मायने Kollegen. Sie sind meine Kollegen means you are my colleagues. आप लोग मेरे colleagues हो. Klar, समझ आया सबके? तो जी का सिनेरियो तो बहुत आसान है. तमीज से बात सर करोगे तो अपना ही फायदा सर है. इसमें भी जी का जो आप लोग वगैरह है वो ऑब्जेक्ट से ही पता चला है ना. बिल्कुल. अगर लिखा हुआ देखोगे आप तो ऑब्जेक्ट से पता चलेगा, और अगर बोलोगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आप किसको मुखातिब कर रहे हो. ओके. ठीक है सर. ओके सर. जैसे मैं कहता हूँ फेस्टेन जी का मतलब है कि आप सबको समझ आ रहा है. और अगर मैं सिर्फ एक इंसान को मुखातिब करूँ, zum Beispiel अहमद, और मैं कहूँ कि अहमद आपको समझ आ रहा है, तो जब भी मैं यही कहूँगा फेस्टेन जी. तो जी के सिनेरियो में चाहे एक इंसान को मुखातिब किया जाए या एक से ज्यादा लोगों को मुखातिब किया जाए, जी सेम रहता है. ओके, जी bleibt gleich. Klar, ओके यहाँ सर. तक क्लियर है सबको? Yes. ओके, sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Haben wir heute Personalpronomen im Nominativ gesehen? आज हमने पर्सनल प्रोनाउंस को देखा, लेकिन कौन से केस में? नोमिनेटिव के केस में. नोमिनेटिव का केस क्या होता है, कौन बताएगा? भूल तो नहीं गए? वो सब्जेक्ट पे उसमें वो फोकस करते हैं. सब्जेक्ट पे फोकस हो. Sehr gut, sehr gut. So, wiederholen wir nochmal. एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी इश इश, मतलब मैं. और फर्स्ट पर्सन की बात की जाए लेकिन प्लूरल, विया विया यानी हम. या फर्स्ट पर्सन का मतलब है कि जो बात कर रहा है. ओके. देन सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन में अगर इनफॉर्मल या कैजुअल में मैं बात करें तो सिंगुलर यानी एक शख्स को मुखातिब करने के लिए क्या यूज किया जाएगा? डू का. और कैजुअल वे में ही अगर एक से ज्यादा लोगों को मुखातिब करना हो तो ये ईया ईहा का यूज किया जाएगा. वेरी गुड. देन सेकंड पर्सन फॉर्मल. एक जी शख्स को अगर फॉर्मल वे में मुखातिब करना हो तो जी जी का जी इस्तेमाल किया जाएगा. जी और एक से ज्यादा लोगों को अगर फॉर्मल वे में मुखातिब करना हो तो जी भी जी का इस्तेमाल किया जाएगा. क्लियर? yes, लेकिन सर. इम्पोर्टेंट चीज क्या है? द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट sie kommt immer mit einem großen Buchstaben. Sie हमेशा हमेशा कैपिटल एस को फॉलो करेगा. यू वाला जी. ओके, हमेशा कैपिटल एस को फॉलो करेगा. क्लियर? यस सर. ओके. देन dritte Person, थर्ड पर्सन के ऊपर आते हैं. थर्ड पर्सन वो जो मौजूद नहीं है. er मीन्स ही या वो. या sie मीन्स she, un यानी वो. es has bedeutet it. इट और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल को मुखातिब किया जाए यानी वो लोग, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? जी दे जी यानी जी.
स्मॉल और स्मॉल जी यूज किया जाएगा हमेशा, शी के लिए भी और और दे एक के के लिए लिए भी हमेशा स्मॉल जी यूज किया जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ओके सबको? यस सर यासिर, यस निहाल, यस हुमेरा, सर यस सर फिजा, दुआ ज़हरा, फैसल, हमजा, नशिद, राव इब्राहिम, दानियाल अलस्कला, मिर्जा अली, मरियम। ओके, very good, very good. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं। Übungszeit. Machen wir ein paar Übungen zusammen, okay? मिलकर कुछ एक्सरसाइजेस को करते हैं। जिससे पूछूंगा वो बताएगा und die Reste schreiben im Chat. बाकी जो लोग हैं वो चैट में उसके आंसर्स को लिखेंगे, ओके? Sehr gut. Dann fill in the correct personal pronoun. Nominative. Nominative क्यों लिखा हुआ है? Because it focuses only on subject. सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा। Haben wir viele Personalpronomen gesehen? अभी हमने बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउंस को देखा। Zum Beispiel ich, du, sie, wir, er, sie, es, ihr, sie, de वाला। Okay, haben wir viele Personalpronomen gesehen। हमने बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउंस को देखा। लेकिन कौन सा पर्सनल प्रोनाउन किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाएगा, das üben wir gerade। इसकी प्रैक्टिस अब करते हैं। Meine erste Frage mit Mirza Ali. Mirza Ali, Ich, ich bin ich Talha. wie. Sehr gut, Mirza Ali. Dann Nashid. Nashid, hörst du mich? Yeah, Nashid. sie ist Anna. Sie ist Anna. वो Anna है। She is Anna. Sehr gut. Dann Nihal. Nihal, Nihal, hörst du mich? Oder Rao Ibrahim. Rao Ibrahim. जी आएगा। जी, कौन सा वाला जी? स्मॉल जी जो सॉरी प्लूरल के लिए यूज होता है दे दे। वाला। Sehr gut. Sie sind Peter und Maria. वो लोग पीटर और मारिया हैं। Sehr gut. Dann uh, हुमेरा। ओके हुमेरा, इसमें आप ही का यूज करेंगे, ओके? ही का। Iha. Iha lernt Deutsch. ही का यूज करेंगे, ओके हुमेरा? Iha. ईहा और एया। वाई Yeah, sorry. मतलब Yeah. कोई इसकी लॉजिक है या एया बिल्कुल नहीं, इसमें आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाती है कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट यूज करें, क्योंकि ओ अभी तक आप लोगों ने वर्ब्स पढ़े नहीं हैं, तो इसमें वर्ब्स आ गया, वर्ब आ गया, इसीलिए फिलहाल मैंने इसको पहले ही बता दिया। ओके ओके देन फातिमा खान। फातिमा खान, युजुमेश oder फिजा। फिजा, ist das dein Vater? क्या वो तुम्हारे वालिद हैं? या oder Javiria? ईआर Er, ईआर er. ईआर Okay. Er ist mein Vater. He is my father. Sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं। Das machen wir zusammen. Okay, इसको मिलकर करते हैं। Nehmen Sie den Teil Subpartlines में, MCQ में। Woher kommst Du. डू Woher kommst Du. du, नीना? Du. तुम कहाँ से आई हो? Ich komme aus Deutschland. मैं तो जर्मनी से आई हूँ। Sehr gut. Z. जी Z Woher capital. kommen क्या Sie? Small or capital? कैपिटल Capital. Sehr gut. Woher kommen Sie? Herr Meier? Herr Meier. Herr means Miss. Mr. Herr का मतलब होता है मिस्टर। और मिस्टर जब भी किसी को बोला जाता है तो वो हमेशा फॉर्मल सिचुएशन में कहा जाता है।
तो इसका मतलब यहाँ फॉर्मल सिचुएशन को फोकस किया जाएगा. अनिया is krank. अनिया बीमार है. Sie kommt. Sehr gut. Sie kommt heute nicht. आज वो नहीं आ रही. जी यहाँ कौन सा है? स्मॉल. शी वाला है. स्मॉल होता लेकिन ये सेंटेंस की शुरुआत है इसीलिए कैपिटल है. ओके. टिम इज लेगा. टिम तो टीचर है. या या Sehr gut. Er arbeitet in der Schule. वो स्कूल में काम करता है. ओके. arbeitet वगैरह ये जितने भी वर्ब्स हैं फिलहाल इसको लेकर कंफ्यूज ना होइएगा. Das alles lernen wir später. इन सब चीज़ों को आगे कवर करेंगे. Nina und ich kommen aus Spanien. नीना और मैं स्पेन से आए हैं. Wir sprechen Spanisch. हम स्पेनिश बोलते हैं. Wir यानी हम. Nina und ich. नीना और मैं. Sehr gut. Dann Tamara und du. Tamara और तुम. Kommt aus England. तुम लोग इंग्लैंड से आए हो. तुम लोग इंग्लिश बोलते हो. तुम लोग याद आया. तुम लोग. इहा. आपने इहा का इस्तेमाल क्यों किया यहाँ पर? ऐसा क्या दिखा आपको? तुम. तामगा और तुम इंग्लैंड से आए हो. तो अब जब एक से ज्यादा लोगों को मुखातिब किया जाएगा तो कहा जाएगा तुम लोग इंग्लिश बोलते हो. ओके. सो इहा. इहा spricht इंग्लिश. Sehr gut. Sehr gut. जी होता तो हम नीचे भी जी यूज करते, राइट? बिल्कुल. अगर मैं कहता कि zum Beispiel Tamara und sie kommen aus England. तमगा और आप इंग्लैंड से आए हैं तो फिर यहाँ जी आता कि आप लोग इंग्लिश बोलते हैं. ओके. Then match the German pronoun with the English meaning. जिसे पूछूंगा वो बताएगा. ओके. रेस्ट schreiben chat. बाकी सब लोग चैट में लिखेंगे. ओके. Then Miss Nusrat. Miss Nusrat. Hizmish. Oder Hamza. Hamza Hizmish. Yes. Ich. Okay. Ich. I. Ich. I. Sehr gut. Yeah. Du. You. You formal or informal? Informal. Sehr gut. Plural. Singular. Sehr gut. Dann er. Yeah. He. Er, he. Sehr gut. Sie. The small one is like used for the, also used for they or she. They भी हो सकता है. She भी हो सकता है. Sehr gut. Sehr gut. Es. It. Es means it. Sehr gut. Wir. We. First one. We. Sehr gut. Iha. Yeah. They. Plural. You, the 7 one. Plural. Iha. Yeah. You plural informal na. Sehr gut. Dann small z. Wieder. Small z. They. They. Sehr gut. They. Okay. Dann capital Z. You. You कौन सा? You formal or informal? Formal. Formal. Sehr gut. You formal. Alles klar. समझ आया सबके? यासिर, निहाल, हुमेरा, दुआ ज़हरा, अहमद, मरियम. Alles klar? Sehr gut. Sehr gut. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Okay. Dann wer mischt die Antworten? कौन बताना चाहेगा? Heben Sie die Hand. Raise your hand. और अपने हैंड रेज किए रखिएगा. ओके. ओके. हुमेरा अपने हैंड रेज किए रखिएगा. निहाल, बिलाल. ओके. हुमेरा. इश.
ish, used for yourself. C. Used for yourself. Sehr gut. Und du? Humaira? Yes, sir. Du? To use informal way. H. Sehr gut. Used to address one person informally, na? Informally, yes. H. Sehr gut. Dann Nihal. Nihal, er. Used for male individual. Used for male individual. Sehr gut. Und small z? Small z singular, na? Used for female individual. Yeah, used to talk about for female individual. Okay. Then Bilal. Bilal Akhtar. Bilal Akhtar. S. Used for a neutral object. G. Sehr gut. Und wir. F. F. Use for a group that includes yourself. यानी हम. Okay. Iha. Bilal. Iha. A. Okay. Sehr gut. Und sie. E. E. Sehr gut. Sehr gut. Formal way में. Formal way to address someone. किसी को मुखातिब करने के लिए formal way में. Okay. Just keep your hand raise. Okay. अपने hand raise किए रखिएगा. Done. गहन via वाइडा. आगे चलते हैं. Rao Ibrahim. Rao Ibrahim. Yes, sir. Peter ist mein Bruder. Peter मेरा भाई है. सर एया आएगा यहाँ. Ja, sehr gut. Er ist nett. वो बहुत अच्छा है. Sehr gut. Dann Hamza. Mohammed Hamza. Maria ist meine Schwester. Schwester bedeutet Sister. Maria मेरी बहन है. Bruder means brother यानी भाई. Z. Z. Sehr gut. Z. Yeah. Is Okay, friendly. then Daniel. Daniel. Kinder. बच्चों. Yeah. Iha. Iha seid laut. तुम लोग बहुत शोर कर रहे हो. Iha seid laut. You all are loud. Okay. Sehr gut. Dann Javeria. Javeria. Herr Schmidt. Capital S. Capital S वाला Z. Herr Schmidt. Sie sind freundlich. You are friendly. Sehr gut. Replace the names with the correct pronoun. अब आपको names को pronoun से कर दिया replace फोर्थ वाला छोड़ा था ऊपर वाली साइज में. कुछ रह गया क्या? बिया होना चाहिए थर्ड वाले में. Oh, sorry. Third one. Peter und ich. Peter और मैं दोस्त हैं. Wir. Wir Sind sind glücklich. हम खुश हैं. Okay, wir sind glücklich. Sehr gut. Okay, then replace the names with the correct pronoun. आपको names को pronoun से replace करना है. So, zum Beispiel Anna. Anna female का नाम होता है. तो आप इसको किस pronoun से replace करोगे? Z. Z से. Small z. Okay, small z. दुआ ज़हरा small z. Very good. Then Miss Nusrat. Lucas. जी सर. सर लुकास नाम है ना, तो ये मेल ईया ईआर. Er. Er. या Sehr gut. Rao Ibrahim. यस सर. सर इनके लिए होगा अन्ना und लुकास. जी आएगा सर. दे वाला. Sehr gut. जी दे वाला. वो लोग. Sehr gut. Dann Bilal Akhtar. Bilal Akhtar. Anna und ich. Wir. Wir. Anna और मैं. यानी हम. बिलाल अहमद. बिलाल अहमद.
Ihr. Ihr, sehr gut. Du und Lukas. तुम और लुकास. तुम दोनों या तुम लोग दोस्त हो. Ihr seid Freunde. Sehr gut. फैसल मलिक. फैसल मलिक. Frau Müller. सर फाउ क्या होता है दोनों? Frau means Mrs. ना या Miss. जी जी आ सकता है आप वाला. ओके आप वाला जी आ यस सकता है या इसकी जगह शी वाला जी भी हो सकता है. और हैम्यूला. हैम्यूला के लिए भी जी आ सकता है अगर आप हैम्यूला को आप से मुखातिब करो. लेकिन इसको एया भी कहा जा सकता है. एया या जी. ओके ही और शी. sehr gut. Und हाँ कौन रह गया? दुआ जहरा ह्यूजुमेश oder नशीद यासिर. कहाँ सो गए सब? Herr und Frau Müller. सर दे इसमें वाला सर जी आएगा दे वाला जी आएगा. आप लोग आएगा. जी आएगा Er सर und दे Frau वाला. Müller आप लोग. डे वाला जी आएगा. दे वाला जी आएगा नहीं, या आप. बिल्कुल एक ही बात है. अगर आप दोनों आएगा. उनको पर्सनली मुखातिब कर रहे हैं कि आप लोग, तो आप यू ऑल वाला जी यूज करेंगे. ओके यू ऑल. लेकिन अगर आप इनको एज अ थर्ड पर्सन डील कर रहे हैं कि है und Frau Müller वो लोग, तो दे वाला जी भी हो सकता है. Klar? Sehr gut. Dann haben wir auch viele Übungen. बहुत सारी Exercises हैं. Aber machen Sie alle Übungen zu Hause, okay? इन सब Exercises को घर से किएगा. So beenden wir heutige Vorlesung. आज के लेसन को यहाँ एंड करते हैं.